So, hello and welcome to the life biography and works of Raja Rao, one of the most important writers in our Indian English literature. In today's video, we are going to be looking at his biography, his list of works, the titles that he was conferred upon, and some of the questions for you to know how you have to prepare this particular writer, what kind of questions are being asked from him. When I talk about Raja Rao, he is an Indian American writer of Indian English literature born in 1908. Now, you have to remember this particular date because you will be given a question where you will be placed along with many other writers to place him in chronology as per his birth date. So 1908 से 2006 तक का इनका time है. He was born in India, but later he moves on and goes to US Texas, and that is why the name Indian American writer. He is considered one of the three main pillars in Indian English literature, or the Holy Trinity, with your Mulk Raj Anand and R.K. Narayan. But there is a difference between his writings and the writings of these two writers. When I talk about these two writers, they are famous for showing stark reality of our Indian tradition, Indian culture, Indian colonialism through their works. But when I talk about Raja Rao, he is not just a novelist, he is a thinker, he is a philosopher, and he is a spiritual seeker. When you are going to read his biography in detail, you are going to find that he was deeply rooted in India's philosophy, like metaphysics and Vedant philosophy. This is that philosophy which talks about the concept of non-dualism. We usually talk about Atma and Paramatma and their difference, how you have to attain moksha or certain things. But this Vedant philosophy is based on the concept of non-dualism, that each and everything is possessed by you only. You are that person only, and you are that divine only. Everything is interconnected. Metaphysics is that idea that talks about a realm or a feeling beyond the physical. So he was a person who was deeply in search of his own identity, in search for the truth, and this becomes the major dominant feature in all his novels. You are going to see psychological depth in his novels, which is quite different from what Mulk Raj Anand and R.K. Narayan were writing. When I talk about his early life, he grew up in an orthodox Brahmin family who valued knowledge and wisdom. So you have to keep this in mind, because when you read his biography, as I told you, you are going to find out that he was such a great and versatile kind of person who has studied at length so many things. He had studied history, he had studied philosophy, he had studied French literature, he had studied Indian philosophy, then he has also studied Sanskrit at length. So you can already imagine कि किस टाइप के ये पर्सन रहे होंगे, जहां पर इनकी फैमिली में भी इन द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज एंड विजडम पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है. His father was the professor of Kannada and mathematics. So you can just imagine the father being such a scholarly figure, also that his grandfather was a priest and a scholar. So इनका जो इंडियन फिलोसफी या फिर स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स जो फर्स्ट हैंड एक्सपोजर होता है, वो इनके ग्रैंडफादर से इनको मिलता है, बिकॉज इनके ग्रैंडफादर से ही इनको इंडियन एपिक्स, पुराण्स एंड इंडियन स्टोरीज, फोकलोर स्टोरीज एंड स्पिरिचुअलिटी का जो सबसे पहला एक्सपीरियंस होता है, वो इनके घर से ही शुरुआत हो जाती है. एंड दस ही कम्स आउट टू बिकम सच अ ग्रेट नॉलेजेबल स्कॉलर. He is interested and he studies in Hyderabad University and later in France, where he explored Western philosophy, literature, and existentialism. He received scholarship and Asiatic scholarship, and then he studied abroad. Even after going to abroad for many years, India remained at his heart and his thoughts. And when you read his works, you are going to see the dominant features of India, the spirituality, the psychological depth, the struggles of India's people is shown in his novels. When I talk about the awards, honors, and recognition that has been conferred upon him, Sahitya Akademi Award 1964 में इनको मिला है for one of his very important work, The Serpent and the Rope. Then Padma Bhushan Award इनको मिला है 1969 में for contribution to literature. Then we have this New Star International Prize for Literature. Now this is a very, very prestigious award, also sometimes often called the American Nobel Prize, given to all the prestigious contribution that has been done by people in literature. तो वो इनको मिला हुआ है. You have to keep this in mind. He was the first Indian to win this international literary award. तो ये जो first Indian वाले point हो गया, तो इस point को अपने notes में जरूर से लिखिएगा. He also won Padma Vibhushan in 2007. तो as I already told you कि 2006 में इनकी death हो जाती है. After that, he was given this title, which is India's
सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. सो व्हेन यू मेक नोट्स आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा. व्हेन आई टॉक अबाउट नॉवेल्स, नाउ इन्होंने खुद के लिए बोला है कि लिटरेचर लिखना इनके लिए एक साधना के बराबर है. सो ही इज नॉट वन पर्सन जिनके वर्क्स को आप एक एक साल में पब्लिश होते हुए देखेंगे. जस्ट लुक कि कितना डिफरेंस है. 1938 में इनका एक वर्क पब्लिश हो रहा है, 1960 में दूसरा वर्क पब्लिश हो रहा है. जस्ट सी द नंबर ऑफ ईयर्स दैट ही हैज टेकन टू राइट लिटरेचर. एंड जो पहला भी इनका वर्क है वो 1930s में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, 1938 में ये पब्लिश होता है. तो ही इज नॉट अ वेरी हैस्टी काइंड ऑफ पर्सन जिसके बस दिमाग में एक स्टोरी आई एंड उन्होंने जाके पब्लिश कर दिया. ही वाज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन एंड इनकी जो डेप्थ थी लिटरेचर की या किसी टॉपिक की वो बहुत ज्यादा डीप थी. साइकोलॉजिकल नॉवेल्स होती हैं इनकी, आप इनके वर्क्स को जब भी पढ़ेंगे तो दैट इज वाई आई जस्ट वॉन्टेड यू टू पिन पॉइंट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो हम लोग को अक्सर राइटर्स में देखने को नहीं मिलता है. His most famous work, Kanthapura, is an extremely important work. The main protagonist of the novel is Murthy. ये जो कहानी है वो अचका नाम की एक औरत जो नरेटर है वो बता रही होती हैं. काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपसे पूछे गए हैं कंथापुरा से डिटेल में जाके. तो आपको ये जो हाईलाइटेड मैंने कर दिया है, आपको आज ही डिटेल में जाके इसकी प्लॉट समरी निकाल के इनके प्रोटैगनिस्ट जैसे रंगमा हो गया, केंचम्मा हो गया, जो इन कंथापुरा जो साउथ इंडियन एक गांव है उनकी गार्डियन डीटी थी, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो प्लीज गो अहेड आफ्टर दिस वीडियो एंड इनको निकाल के आपको पढ़ना है. देन वी हैव सर्पेंट एंड द रोप, द नॉवल जो इल्यूजन के बारे में, माया एंड जो नॉलेज है उसके बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है रामास्वामी की. एंड दिस पर्टिकुलर वर्क इज एन सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क. आपको पता होना चाहिए कि राजा राव की खुद की 3 बार शादियां हुई थी. ही वेंट थ्रू डिवोर्सेस एंड बहुत इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स रही थी. तो उसको वन ऑफ द डिवोर्सेस विद वन ऑफ हिज फ्रेंच वाइफ को शो किया है इन्होंने इस पर्टिकुलर नॉवल में कि किस तरीके से ही पहले ही उनसे प्यार में पड़ते हैं, फिर डिटैच्ड हो जाते हैं, ही फॉल्स इन लव विद अनदर वुमेन एंड देन सब कुछ खो जाने के बाद ही फील्स एक रिनंसिएशन के एक दौर पे ये चलने लगते हैं. एंड देन ही स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग हिज ओन आइडेंटिटी, हिज ओन सेल्फ. एंड देन फिर ये अपने सर्च ट्रुथ के सर्च पे ये चल जाते हैं. तो यू हैव टू गो एंड फाइंड दिस स्टोरी. प्लॉट समरीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी एंड विकिपीडिया पे मिल जाएगी. प्लॉट समरीज आपको पढ़नी है, प्रोटैगनिस्ट के नेम्स आपको पता होने चाहिए. देन वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, द कैट एंड द शेक्सपियर, जो कि एक फिलोसॉफिकल ह्यूमरस कॉमेडी है. एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इन्होंने लिखा है वेयर यू हैव बीन गिवन और टॉट फिलोसफी और टीचिंग्स थ्रू ह्यूमरस वे. तो जरूर से इसको जाके पढ़िएगा, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है. वी हैव 2 more works. We have Comrade Kirillov and we have Chess Master NS Moves. इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, but you have to remember the titles because Raja Rao no doubt is a very important novelist. When I talk about other works of his, तो यहाँ पे इनके short stories in anthologies यहाँ पर लिखी हुई हैं जो आपको एक बार देख लेनी है. ये वाला जो वर्क है 5 इंडियन मास्टर्स, ये एक कंपाइल्ड बुक है ऑफ 5 ग्रेट मास्टर्स जिसमें राजा राव आ जाते हैं, मुल्क राज आनंद आ जाते हैं, प्रेमचंद आ जाते हैं एंड आई गेस आई एम मिसिंग 2 मोर. आप लोग जरूर से एक बार कमेंट करके बताइएगा कि 5 इंडियन ग्रेट मास्टर्स की ये जो पूरा कंपाइलेशन है उसमें कौन से 5 राइटर्स की बात की गई है. सो इन सभी वर्क्स को आप लोग एक बार जरूर से टाइटुलर बेस पे देख लीजिएगा. क्वेश्चंस को हम लोग एक बार देख लेते हैं. यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं 4 मेजर वर्क्स एंड यहाँ पर कैरेक्टर दिए हुए हैं. तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि रामास्वामी इनकी एक नॉवल विच इज सर्पेंट एंड द रोप का मेन कैरेक्टर है. एंड ये जो रामास्वामी है आप इनको राजा राव ही समझ सकते हैं बिकॉज ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो डिवोर्स कहानी ये सब दिखाता है. तो इसको आप लोग याद रखिएगा. वी हैव कूली जो मुन्नू की कहानी बताता है. वी हैव वेटिंग फॉर महात्मा जो श्री राम की कहानी बताता है. तो एज एंड व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग दीज राइटर्स एंड कैप्चरिंग द कैरेक्टर्स, आप इनको याद करने लगते हो तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके बनने लगते हैं. एंड मुल्क राज आनंद, आर.के. नारायण, इन सब की ये मेजर नॉवेल्स के कैरेक्टर्स हैं तो आपको ये लर्न करने ही पड़ेंगे. ओके, सो दिस इज द आंसर. यू कैन जस्ट मैच एंड सी what is the correct chronological order of the publication of the text. अब आपको यहाँ पे जितने भी नाम दिखाई दे रहे हैं, we have R.K. नारायण, we have मनोहर मालगुणकर, we have राजा राव, we have शशि थरूर, we have अरुंधति रॉय. एंड जितने वर्क दिखाई दे रहे हैं ये कोई माइनर वर्क्स नहीं है दैट यू इमेजिन कि नहीं हमें माइनर वर्क्स के डेट को नहीं याद करनी चाहिए. ये सभी मेजर वर्क्स हैं. आपने अगर मेजर राइटर्स की एक लिस्ट बना ली, उनके मेजर नॉवेल्स जो हर एक आप समझ लीजिए कि राइटर की 3 या 4, 5 या 6 होती हैं, वो आप
आपने याद कर ली, यू आर डन। इंडियन लिटरेचर को ऐसे दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा मॉन्स्टर है या वो आप नहीं कर पाओगे या इतने राइटर्स करने हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सिर्फ नोन राइटर्स को प्रिपेयर करना होता है, उनके नोन वर्क्स को प्रिपेयर करना होता है। अननोन सेक्शन से 2 3 4 क्वेश्चन ही आएंगे, पूरा पेपर ही अननोन पेपर का नहीं बना दिया जाएगा। कीप दिस इन माइंड। द नेम ऑफ द गॉडेस इन कंथापुरा इज, नाउ इस क्वेश्चन से आपको ये पता लगता है कि कंथापुरा जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क है वो आपको डेप्थ में जाके पढ़ना है, क्योंकि उससे उसका नरेटर आपसे पूछ लिया जाएगा, उसके कैरेक्टर के साथ क्या हुआ था वो पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन है उस गांव की गार्डियन डीटी विच इज द गॉडेस, ये केंचम्मा है। ठीक है, नेक्स्ट, in which of the following novel हरि कथा is strategically used as a medium of consciousness raising? तो जब आप जाके कंथापुरा पढ़ेंगे, which is the story of मूर्ति who is a pro गांधी, जो अपने विलेजर्स को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा है, एडुकेट करने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स द वाइसेस लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड और भी जो आपके गांव में प्रेवलेंट थे, एंड ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू एजुकेट द पीपल टू ड्राइव दिस ब्रिटिशर्स आउट ऑफ आवर कंट्री एंड हाउ दे आर एक्सप्लॉइटिंग। तो वो हरि कथा का इस्तेमाल करता है थ्रू वन ऑफ द कैरेक्टर्स जया रामचर, एंड ये लोग कहते हैं कि हरि कथा सुनने तो लोग आएंगे एंड वहीं पे ही हम लोग उसको एजुकेट करने लगेंगे। सो दिस इज अ क्वेश्चन जो आपको शो करता है कि डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस नॉवल से, तो यू हैव टू गो टुडे एंड आपको इसको पढ़ लेना है। क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं जिसको आप डीप में जैसे जैसे जाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, यू विल कम टू नो कि दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर राइटर। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिली होगी कि किसी राइटर को या किसी पर्टिकुलर सेक्शन को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर होती जाएगी। इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी ऑल द राइटर्स और ऑल द अदर सेक्शंस जो मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं, तो जस्ट गो अहेड एंड आप इनके फ्री लेक्चर्स को अवेल करके अपने आप को सेटिस्फाई करके यू कैन इजिली बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आप अपनी जर्नी को और भी बेहतर एंड ईजी बना सकते हो। आई एम ऑलरेडी होपिंग कि यू मस्ट बी अ पार्ट ऑफ माई व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज यहाँ पे डेली बेसिस पे बच्चों को पोल्स, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज ऑन स्क्रीन मिलते हैं, जो बच्चों की स्क्रीन पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस एंड अपने आप को इवैल्यूएट करने की जो स्पीड होती है उसको बढ़ाता है। सो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ माई दिस प्लेटफॉर्म्स, इससे मैं आपसे और भी ज्यादा कनेक्टेड रहती हूँ। डू लेट मी नो योर फीडबैक अबाउट दिस वीडियो एंड द नेक्स्ट वीडियो आप कौन से इंडियन राइटर पे देखना चाहोगे उसको भी मुझे कॉमेंट करके बताना। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।